Good afternoon, student. Today, again, I am going to discuss the question answer part of chapter friction. E part. I will discuss E part. Answer the following questions. Define force of friction. List the factors affecting the force of friction. Explain with examples. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करना है एंड लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विथ एग्जाम्पल. एज यू नो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एनी फोर्स दैट opposes the motion of an object due to the contact of the object with other bodies. As you know, what factors affecting the force of friction? The factors affecting the force of friction are: first, nature of the two surfaces in contact. For example, rough surface, a smooth surface, liquids, etc. And second, force pressing the two surfaces together as given in your book. You can see. For example, in a stock of books, one book exerts pressing force another book and while preparing rotis, duff is pressed between our palms. वो कौन सा फैक्टर है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है? फर्स्ट, नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, लिक्विड्स, etc. एंड सेकेंड, फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर. For example, one book exert another book, just place one above the other. जबकि प्रिपेयरिंग रोटी बनाते समय डफ मीन्स गूथा हुआ आटा को प्रेस किया जाता है बिटवीन आवर पाम्स. रोटी बनाने के समय में हाथ के बीच में डफ को चपटा करके प्रेस करके रोटी बनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. ए बॉल इज अलाउड टू रोल डाउन एन इंक्लाइंड वुडन प्लेन फ्रॉम ए गिवन हाइट. एट द फुट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इट मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस डिफरेंटली covered one by one as shown in the following figures. एक बॉल को रोल किया जाता है, छोड़ दिया जाता है इंक्लाइंड वुडन प्लेन पर. दैट इज द इंक्लाइंड वुडन प्लेन. देयर आर 3 figures, केस ए, केस बी, केस सी. इन ईच केस देयर आर सम डिफरेंसेज. covered with newspaper, covered with woolen cloths and covered with glass sheet, plain glass sheet. बॉल यहाँ से गिरेगा और न्यूज़पेपर पर लुढ़क करके रोल होकर के आगे बढ़ेगा. बॉल यहाँ से गिरेगा और वूलन क्लॉथ पर आगे बढ़ेगा. एंड थर्ड केस, बॉल यहाँ से रोल होकर के प्लेन ग्लास शीट पर रोल होगा. क्वेश्चन इज आस्किंग इन विच केस इज द बॉल लाइकली टू मूव the longest distance. Give reason for your answer. किस केस में, इन तीनों केस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में तय करेगा? रीजन बताना है. कैन सी. इन केस सी, द बॉल मूव्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. वाई? बिकॉज प्लेन ग्लास शीट, इट हैज लेस friction in comparison to newspaper and woolen cloths.
What is the reason? A plain glass sheet has less friction as compared to newspaper and woolen cloths, so ball moves longest distance on plain glass sheet. Okay. Next question, question number 3. Explain why sliding friction is slightly less than static friction. As you know, static friction is more than sliding friction. But question is asking why sliding friction is slightly less than. As you know that when a body is at rest, then the force active between the two surfaces in contact is more due to interlocking, due to irregularities on two surfaces locked into one another. I have discussed many times in this regard. But when a body is moving or sliding, the contact point do not get enough time to lock into one another. जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो इट बिकम्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन. दैट इज रिटन. सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन static friction. Okay. Next question, question number 4. Question number 4 has A, B, C, D, E, F, G, H, I, J questions. So we will discuss one by one. Give reason for the following. First questions. We tend to sleep when we step on a banana peel. केले के छिलके पर जब पैर पड़ जाए तो हम लोग स्लिप क्यों कर जाते हैं? Give reason. The banana peel makes the surface smooth, so the friction between our feet and the ground decreases. So when we step on banana peel, no grip is provided by the surface and we slip down. बनाना केले के छिलके पर जब पैर पड़ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि इट हैज़ लेस फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड. नो ग्रिप इज प्रोवाइडेड बाय द सरफेस एंड आवर फीट, सो वी स्लिप डाउन. क्वेश्चन नंबर बी, 4 का बी. इट इज इजियर टू पुश ए लाइटर बॉक्स देन ए सिमिलर हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर. क्वेश्चन इज आस्किंग लाइटर मीन्स हल्का. एक हल्का बॉक्स को पुश करना आसान है और सेम हैवी बॉक्स, उसका वॉल्यूम सेम हो, सेम वही बॉक्स हो लेकिन भारी हो, हैवी हो और उसी फ्लोर पर हो, तो लाइटर बॉक्स को पुश करना आसान होता है. क्यों? तो मैं अभी डिस्कस किया था फोर्स प्रेसिंग नेचर फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर. तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, सी. हैवी बॉक्स हैज ए हायर मास देन लाइटर बॉक्स एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स विल बी स्ट्रॉन्ग ऑन इट until, जब तक कि until pressed with great force. क्योंकि हम जानते हैं कि हैवी बॉक्स है तो फोर्स अप्लाइड बाय हैवी बॉक्स टुवर्ड्स ग्राउंड इज मोर with great force. That is why it is easier to push a lighter box than a similar heavy box on the same floor. Okay. Question number C. The force needed to start a cart is greater than. The force needed to start a cart is somewhat greater than the force needed to keep it moving with a uniform speed. It means वह फोर्स जो कार्ट मीन्स गाड़ी,
वह फोर्स जो गाड़ी पर लगाया जाता है स्टार्ट करने के लिए, वह ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है, वह ज्यादा फोर्स होता है देन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन जब स्टार्ट हो जाता है तो यूनिफॉर्म स्पीड में रखने के लिए, यानी वो फोर्स क्या रहता है, कम लगता है। इसी पर चर्चा करनी है। सो सी द आंसर, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कार्ट इज ग्रेटर, वाई, देन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज इट नीड्स टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इनर्सिया। इनर्सिया क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, और जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है। तो अगर कोई कार्ट रेस्ट में है, इट मीन्स इरेगुलरिटीज बाय द इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग और इरेगुलरिटीज से ओवरकम करने के लिए, बिकॉज इट नीड्स टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इनर्सिया, इसीलिए द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कार्ट इज ग्रेटर देन इट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज इट नीड्स टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। ओके, दैट इज ए टिपिकल टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी, स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विथ स्पाइक्स। यू नो वेरी वेल, स्पोर्ट्समैन के जूते में स्पाइक्स लगा हुआ रहता है। क्यों? A sportsman use shoes fitted with spikes to provide the shoes better grip on the floor. Floor means ground, जहां पर वो चलते हैं। Better grip on the floor so that they can move safely. Question number E. Ball bearings are used in machines. मशीन में बॉल बियरिंग का यूज क्यों किया जाता है? Ball bearings are used in machines. You can see in bicycle. You can see in fan. Ball bearings are used in machines. Why? Which have a lot of movement in their working process. Machine continuous चलता रहता है. Ball bearing reduce the friction during motion, so that efficiency of the machines is increased and they move in a smooth manner. बॉल बियरिंग फ्रिक्शन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इसीलिए मशीन के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो स्मूथ मैनर में चल सके, इसीलिए बॉल बियरिंग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर एफ, टायर्स ऑफ द व्हीकल्स नीड टू बी चेंज्ड रेगुलरली। किसी भी व्हीकल्स का टायर को समय समय पर चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो टायर्स ऑफ द व्हीकल्स नीड टू बी चेंज्ड रेगुलरली बिकॉज विथ पासिंग टाइम they get worn off and due to the friction they become more smoother. व्हीकल्स का टायर समय के दौरान, समय गुजरने के दौरान वोर्न ऑफ, घिसता चला जाता है। उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो वोर्न ऑफ हो जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण वो स्मूथ हो जाते हैं। इसीलिए अगर स्मूथ हो जाएंगे दे कैन skid at that place. Due to this, tires of vehicles need to be changed regularly. Question number G. Machines
parts are frequently oiled or greased. मशीनरी पार्ट्स को ऑयलिंग और ग्रीजिंग किया जाता है लगातार, बार बार. क्यों? मशीन्स पार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑयल्ड और ग्रीस्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हेल्प इन अ स्मूथ रनिंग ऑफ द मशीन. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और मशीन कंटिन्यूअसली स्मूथली रन कर सके, इसीलिए मशीन में ऑयलिंग और ग्रीजिंग करते रहना चाहिए. एच. स्पोर्ट्स कार, एरोप्लेन्स एंड बोट्स आर डिजाइंड टू हैव ए स्ट्रीमलाइंड शेप. A sports car, aeroplanes and boats travel at a very fast speed. Hence they need such a body which can easily move in air or water so as to get maximum speed without drag. Thus a streamlined body is provided to them so that to reduce drag. मैंने इस पर पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि स्पोर्ट्स कार, एरोप्लेन्स और बोट्स आगे से नुकीला होता है. दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड. फॉर व्हाट पर्पस? सो दैट दे कैन ट्रेवल वेरी फास्ट स्पीड. ऑल्सो so as to maximum speed without drag. Okay. Question number I. Metal chains are wrapped on tires when they run on icy roads. मेटल चेन्स टायर पर रैपिंग किया रहता है, लपेटा हुआ रहता है. रैप्ड मीन्स लपेटा हुआ. टायर, वैसा टायर जो आइसी रोड्स पर रन करता है, उस पर मेटल चेन चढ़ा हुआ रहता है. वाई? एज यू नो, एज आइस इज स्लिपरी एंड देयर इज ऑलमोस्ट less friction, so tires are wrapped with metal chains. Why? To create high friction so that cars or trucks can easily move on them. Okay. Question number J. Rollers are used for transporting luggage. ट्रांसपोर्टिंग लगेज में रोलर का यूज आप देखे होंगे, सूटकेस, ब्रीफ केस वगैरह में रोलर्स का यूज किया जाता है. क्यों? रोलर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लगेज गुड्स. वाई? बिकॉज द मैग्नीट्यूड of the rolling friction is less than any other kind of friction. You can write this type of answer. Either you can write ये आंसर भी आप यूज कर सकते हैं लिखने के लिए. सी, rolling decreases the friction and makes movement of things easier. Rolling decreases the friction. Rolling क्या काम करता है? फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देता है. and make movement of things easier. That is why luggages are fitted with rollers. Next, last question. Question number 5. State and explain with examples how friction can help the cause of motion in certain situations. State and explain with examples how friction can help
द कॉज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशन, किसी खास सिचुएशन में कॉज ऑफ मोशन कैसे, हाउ फ्रिक्शन कैन हेल्प द कॉज ऑफ मोशन। सीधा आंसर, फ्रिक्शन कैन हेल्प द कॉज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशंस। फ्रिक्शन कैन हेल्प इन सर्टेन सिचुएशंस। फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, वी कैन वॉक ऑन द रोड एंड फ्लोर। वी कैन वॉक ऑन द रोड एंड फ्लोर ड्यू टू फ्रिक्शन। हम लोग रोड पर क्यों चल पाते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हीकल्स रन ऑन द रोड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देयर टायर्स एंड रोड। टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ड्यू टू दिस व्हीकल्स रन ऑन द रोड। एंड थर्ड एग्जाम्पल, वी स्लीप एंड व्हीकल्स स्कीड इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग स्लिप कर जा सकते हैं और व्हीकल्स भी स्कीड कर जा सकते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल्स हाउ फ्रिक्शन कैन हेल्प द कॉज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशन। ओके, थैंक यू।